18واں روزہ ہے اور آج جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، یعنی اب اگلا جمعہ جو آئے گا وہ جمعۃ الوداع کا ہوگا۔ یہ 3 جمعۃ المبارک میں ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم اللہ کے حضور عبادت کر رہے ہیں۔ ایک تو رمضان کا مہینہ اتنا برکتوں والا، اور پھر اس کے بعد تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن۔ ناظرین، یہ عشرہ مغفرت بھی ہے، اور عشرہ مغفرت کے اندر ہم اپنی گناہوں سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر توبہ کرنے کے بعد یہ نیت کریں کہ آئندہ وہ گناہ نہ ہو۔ خوف خدا کیا ہے؟ دیکھیے، خوف خدا دراصل یہ یقین ہے کہ خدا ہے، یہ یقین ہے کہ وہ ہم سے ہر بات کا حساب لے گا، یہ یقین ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کریں تو وہ ہم سے ہر چیز کا حساب لے گا۔ خوف خدا یہ ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، خوف خدا یہ ہے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں، خوف خدا یہ ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے تو میرا جو حق ہے وہ تو میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر تو نے کسی انسان کا دل دکھایا، کسی انسان کا حق مارا، کسی انسان کو ناراض کیا، تو وہ حق انسان کے پاس یہ ہے کہ وہ تجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں پھر اس معاملے میں بیچ میں نہیں آؤں گا، پھر جس کے تم گناہگار ہو، جس کے تم خطا کار ہو، پھر وہ شخص تمہیں معاف کرے گا تو کرے گا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ خوف ہے، اور جب اللہ معاف نہ کرے نا تو بس سمجھ لو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، تالے لگا دیتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی بخشش نہیں ہونی ہوتی۔ اللہ کئی بار موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ آج میں اچانک سے خوف خدا کا ٹاپک کیوں لے کے آ گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ آج کل آپ ایک نیوز دیکھ رہے ہیں کہ ایک ظالم ڈور، پتنگ کی ایک ظالم ڈور، پتنگ کی ایک قاتل ڈور جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز تھی، اس سے فیصل آباد کے ایک 22 سالہ نوجوان بے دردی سے، میں تو کہوں گا کہ یہ قتل ہی ہے۔ آصف اشفاق 7 بہنوں کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ قصور کیا تھا یار؟ جا رہے تھے، والدہ سے کہہ کے گیا تھا کہ میں افطاری کا سامان لے کر آ رہا ہوں، آپ افطاری کی تیاری کریں۔ کیا پتا تھا اس کی ماں کو، کیا پتا تھا اس کی بہنوں کو کہ جس کی عید کے بعد شادی ہونی تھی، بہنوں نے ہاتھوں پہ مہندی لگانی تھی، کیا پتا تھا کہ شادی سے پہلے ہی اس کے ہاتھوں میں خون کی مہندی لگ جائے گی۔ ہم پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا ایک شوق کسی کی زندگی لے سکتا ہے۔ حکومت پاکستان نے پتنگ بازی پر پابندی ہی اس لیے لگائی تھی کہ ہم لوگ حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں۔ مقابلہ، پتنگ اڑانا کھیل ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا تھا، ایک نارمل سی ڈور ہوتی تھی، آپ کی پتنگ کٹ گئی تو آپ ہار گئے۔ اگر ہار گئے تو کھیل میں ہار جیت تو ہوتی ہے، نہیں ہار نہیں تو نہیں تھا، ڈور میں کیمیکلز لگا دیے، ڈور میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایسی لگا دی کہ جی ہماری ڈور جو کٹ نہیں سکتی، ہماری پتنگ کٹ نہیں سکتی، لیکن اس چکر میں نہ جانے کتنے لوگوں کے گلے کٹ چکے ہیں۔ اور آصف اشفاق کوئی پہلا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کے گلے پہلے بھی کٹ چکے ہیں۔ آپ دیکھتے تھے کہ اکثر لوگ بائک پر ایک تار لگایا کرتے تھے ایسے، تاکہ اگر ڈور آئے تو بچ جائے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے پھر بسنت پر پابندی لگا دی کہ بھئی جب تم کنٹرول سے باہر ہو رہے ہو، اپنی حد کراس کر رہے ہو، یعنی یہ کھیل کو تم نے
जंग बना दिया है और उस जंग में तुम उस डोर से सबको कत्ल कर रहे हो। तो जब मना कर दिया था तो हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम हद से ज्यादा पार हो जाते हैं ना, हदें पार कर जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता किसी की जान जा रही है, हमें ये नहीं पता होता वो मरने वाला किसी का बाप है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, या मरने वाला किसी का बेटा है या किसी का शौहर है, या हो सकता है वो घर का वाहिद कफील हो। नहीं जी, पतंग उड़ानी है और ज्यादा से ज्यादा मांझे पर केमिकल लगाने। मैं कहता हूं कि कसूरवार सब हैं, सब कसूरवार हैं इसके। पतंग की डोर बनाने वाले भी जो ऐसी डोर बनाते हैं, और वो इस्तेमाल करने वाले भी जो उसको इस्तेमाल करते हैं। पुलिस कहती है कि आसिफ अशफाक का कातिल पकड़ा जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर पकड़ा जाए वो तो अलग बात है, लेकिन कैसे पकड़ा जाए? डोर पता नहीं कहां से चल रही थी, किसके हाथ में थी। कितनी बार पुलिस ने छापे मारे हैं जो इस तरह के खूंखार पतंगबाजों के पास के जो इस तरह की डोर इस्तेमाल करते हैं। छापे मारे, बेहिसी का आलम यह कि छतों से कूद कूद के भाग जाते थे। और ये इतने साल जब पतंगबाजी बंद रही, लोग छुप छुप के ऐसे मांझे और डोर इस्तेमाल करते थे जिससे हाथ भी कट जाते हैं लोगों के। अब वो पतंग इस्तेमाल करने के लिए खुद तो ग्लव पहनते कि हाथ ना कटे, लेकिन वो डोर अगर रोड पर, सड़क में किसी गली पर चलते शख्स के गले पर फिर जाए, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। अगर आपने वीडियो देखी हो आसिफ अशफाक की फैसलाबाद में, सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो है, वो शख्स जा रहा है, गिरने के बाद वो देख रहा है कि मैं गिरा क्यों हूं, और फिर ऐसे खून इसका बह रहा है जैसे किसी ऊंट को नहर किया जाता है। और वो देख रहा है इतना सारा खून आया कहां से, वो परेशान था। जब उसने देखा खून मेरे पास से आ रहा है, और फिर जब लोगों ने आकर देखा, गले पे उसके कपड़ा बांधने की कोशिश की, बस उसी वक्त वो खालिक हकीकी से जा मिला। कहने वाले कहते हैं कि डोर इतनी सख्त थी कि 3 उंगलियों के बराबर गहरा कट था उसके। ये बेहिसी हमारी कब खत्म होगी? अब मुझे नहीं पता, मेरे कहने से कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इंसान के अपने सोचने से। अगर आज के बाद भी हम पतंग इसी तरह मांझे और इस तरह के मांझे और डोर इस्तेमाल करेंगे जिससे लोगों की गर्दनें कट जाएं, लोग जख्मी हो जाएं, लोग मारे जाएं, तो फिर ये याद रखना कि तुम पुलिस से तो बच सकते हो, उनके घर वालों से तो बच सकते हो, अल्लाह से नहीं बच सकते। अल्लाह से नहीं बच सकते। यार, एक शौक अगर इंसान की जान ले ले तो लानत है ऐसे शौक पर। पहले पतंगबाजी हुआ करती थी, एक नॉर्मल डोर होती थी, खेल होता था, डोर उससे किसी का ना हाथ कटता था ना किसी का सर कटता था। अगर आपकी गुड्डी कट गई, आपकी पतंग कट गई तो ठीक है, लोग एंजॉय करते थे। लेकिन अब उसको तो मैदान जंग बना दिया गया सर, कि हमारी पतंग तो कटनी नहीं है। और कुछ नहीं पता, अगर आपको ये जो खूंखार पतंगबाज लोग हैं, अगर इनको मौका मिले ना, तो ये लोहे की तारों को गर्म करके भी पतंगबाजी कर सकते हैं। कुछ नहीं पता, ये शौक ऐसा बेहुदा शौक बन के रह गया। एक नॉर्मल से खेल को लोगों ने इतना बेहुदा बना दिया है कि लोगों के घर बर्बाद हो गए। आपकी पतंग की उस खूंखार डोर से न जाने कितने लोगों की जिंदगी की डोर टूट गई है। जरा पूछे ना उस मां से जाके कि जिसको जो ये तैयारी करके बैठी थी कि रमजान खत्म होगा, मेरे बेटे के सर पे मैं सेहरा बांधूंगी। जरा पूछे आसिफ अशफाक की उन बहनों से कि जो इस इंतजार में थी कि मैं अपने भाई को मेहंदी लगाऊंगी। जरा पूछिए आसिफ अशफाक की उस होने वाली दुल्हन से कि जिसकी जिंदगी आबाद होने से पहले ही उजड़ गई, एक पतंग की डोर की वजह से। अब ढूंढे ना कहां है वो। हम 3-4 दिन वीडियो वायरल करेंगे, अफसोस करेंगे, उसके बाद फिर जब मामला नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर उसी के बाद वही उठाते हैं पतंग और वही मांझों पे लगाए केमिकल, मांझों पे लगाए
क्या कहते हैं, कांच पीस कर लगाते हैं। अपने हाथ पे तो ग्लव पहन लेते हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। लोग मारे जाते हैं तो मारे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करेंगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। अभी नहीं, 1 साल बाद, 10 साल बाद आपकी नस्ल में कहीं ना कहीं ये वाकया दोहराया जाएगा, अगर आप जानबूझकर इस बात के कसूरवार हैं तो। और हमें भी ऐसे खूंखार पतंगबाजों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वरना मैं और आप भी कसूरवार हैं जो ऐसी खूंखार पतंगबाजी करते हैं। आसिफ अशफाक तो चला गया, बहुत सारे लोग पतंग की डोर, खूंखार डोर से कटकर इस दुनिया से चले गए, मगर अब आप अहद करें कि आइंदा ऐसे किसी खेल को जो इस खूंखार अंदाज से खेला जाता है, इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। छोड़ दें इस तरह के खेल खेलना। आप क्रिकेट खेलें, आप हॉकी खेलें, 10,000 गेम है, इसमें किसी की जान नहीं जाती। इस इंतहा पर ना पहुंचे कि लोगों की जान चली जाए, लोगों के घर बर्बाद हो जाए। और अगर वो शख्स मेरी इस बात को सुन रहा है कि जिसकी डोर से आसिफ अशफाक का कत्ल किया गया, बेशक आपका इरादा कत्ल करने का नहीं था, लेकिन आपकी डोर से जरूर हुआ। जैसे कभी एक्सीडेंट किसी से हो जाता है, जानबूझकर नहीं होता, लेकिन बंदा मारा जाता है। बहुत सारे लोग हो सकता है सब पतंग उड़ा रहे हो, सब अगर सुन रहे हैं तो टाइम मैच करना कि आसिफ अशफाक के साथ ये वाकया कब हुआ और हम उस इलाके में क्या हम पतंग उड़ा रहे थे, नहीं उड़ा रहे थे। अपने गुनाह का एतराफ़ कीजिए, उसके घर वालों से माफ़ी मांगे। मेरी ये उम्मीद है कि आपने ज़ाहिर जानबूझकर नहीं किया होगा, घर वाले भी, मेरी उम्मीद है कि वो माफ़ कर देंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में भी आपने तौबा करनी है, वरना आप अल्लाह के भी मुजरिम हैं, आसिफ अशफाक के भी मुजरिम और हर उस शख्स के मुजरिम हैं कि जो पतंग की खूंखार डोर से कत्ल कर दिया गया।